बौद्ध के फॉलोअर्स है, वो लोग कास्ट नहीं देखते, वो मुहूर्त नहीं देखते हैं, तो वो शादियां होती रहती है पारसी से लेके सब में। पर सर उनको उनसे लेना देना नहीं है ना। शादियां सब होगी, शादियां यहाँ से शिफ्ट हो गई है। राजस्थानी लोगों में बहुत शादियां हैं, जुलाई तक शादियां हैं, वो शादियां गांव में जाके कर रहे हैं। हम लोगों ने 2 बार, मैंने ऑनलाइन काम शुरू किया था, अक्षय तृतीया और गुड़ी पड़वा पे मेरे पास फुल काम आया था, और उन्होंने कहा था हम कैसे जैसे शुरू होगा हम आएंगे। वो लोग अपना सोना लेके आ रहे हैं, कुछ कैश लेके आ रहे हैं, काम चलेगा। बिकॉज 2021 दिसंबर में लोग सोने को $82,000 देख रहे हैं। बड़े बड़े एनालिस्ट $1900 देख रहे हैं एक आउंस का। आज कुमार भाई आप नहीं होने से क्या होगा, पूरी निगेटिव न्यूज चली आज उसमें। क्यों सर? तो आज कुछ वक्ता थे जो हमारे इंडस्ट्री के बाहर से, लेकिन इंडस्ट्री के पोस्ट पर उन्होंने सबने आज उसको निगेटिव लेके गए कि दिवाली बाद भी बहुत शादियां नहीं निकलेंगी, डिस्टेंसिंग आएगा। तो मेरा ये कहना है कि डिस्टेंसिंग में जो पैसा बचेगा, होटल का पैसा बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन का बचेगा, फ्लाइट का बचेगा, फॉरेन जाने का बचेगा, वो इंडस्ट्री में आएगा। ऐसा बोलेंगे तो लोग इंडस्ट्री में पैसा लाएंगे। ये दिशा दिखाने की जरूरत है इंडस्ट्री को। डिस्टेंसिंग से 30% फर्क पड़ेगा। जो बिजनेस जैसा था वैसा ही होगा, लोग कम आएंगे, काम उतना ही होगा। अविनाश जी, yes sir, should we start Ashok bhai? This is going to go on and on. Okay, so I need your sir, you can proceed. signals. It's 203 and 331 figure is there, so you can start, sir. Okay, good afternoon and a very warm welcome to all friends who have joined in today for another episode of Mindspeak, where we try to invite new speakers to speak on new subjects every day at 2 p.m. It is not necessary that the subjects can only be based on gems and jewelry industry. They can be based on life, can be based on so many other areas of development. आप सब ये जरूर मानेंगे कि हमारी कुछ ऐसी आदतें होती है जो हमको बनाती है या हमको बिगाड़ती है. Like it or not, as humans, we are creatures of habit. और आदत से भी हम मजबूर हैं. However, whether those habits are good or bad, whether those habits are completely unconscious or purposefully planned is largely dependent and in our control. In fact, learning what habits are and how they are created is an important step in creating a smart life and a successful business. Our subject of discussion today is habits make or break, the growth path ahead. Today we have with us Shri Himanshu Bhattji, who is a leadership and management coach for the last 8 years. Earlier, Himanshu Bhai has worked in leadership positions with organizations like Excel India, Asian Paints, Aditya Birla Group, Reliance India Limited, with a 40 years experience on leadership and all its areas around the management. He is presently coaching people at Larsen & Toubro, Aarti India Limited, GEPIL, Sanofi Pharma, Unique Pharma, GCP, TCL, etc., and helping leaders in developing effectiveness as a habit. He is leading this long duration intensive intervention on the effective executive. Himanshu Bhai voluntarily also helps some other trusts and NGOs in this field of work. Before we start, I request you to kindly keep your laptops and mobiles on video off mode so that you will get better sound and better picture quality. At the end, we shall have a time for question and answers. So without further ado, I request Himanshu Bhai to begin his talk. Welcome, Himanshu Bhai. Thank you. Respected Ashok Bhai, Nitin Bhai, Avinash Bhai, my very dear friend Jitu Bhai, and all the participants who have joined this afternoon. I personally thank Ashok Bhai for giving me this opportunity, that is one, to interact with you, but more thanking him for his very kind introduction. Today,
we are going to be talking about habits. And habits make, habits break, and how habits play what kind of role. Manufacturers, traders, service providers, all are entrepreneurs. And all entrepreneurs have the basic responsibility for generating wealth. समृद्धि का सर्जन करना, ये हर एक एंटरप्रेन्योर की एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जो समृद्धि का सर्जन करते हैं वो अपॉर्चुनिटी का भी सर्जन करते हैं. इसीलिए हर एक देश में एंटरप्रेन्योर्स को बहुत वेलकम किया जाता है. आप सब में रहे वेल्थ क्रिएटर्स एंड अपॉर्चुनिटी क्रिएटर्स को मैं रिस्पेक्ट करता हूं और सैल्यूट करता हूं. आज हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं वो हर एक लेवल के एंटरप्रेन्योर्स को काम में आने वाली है. उसको काम में हम ले ना ले वो बात अलग है, लेकिन काम में आने वाली है. जो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो एकदम छोटी सी शॉप चलाते हैं. एज ग्रुप में जो 20 साल के युवा है या 80 साल के हैं, मैसेजेस उन सब के लिए है. आप लोग हर एक वेबिनार में पार्टिसिपेट करते हैं और उत्साह से पार्टिसिपेट करते हैं. ये आप सब लोगों की एक बहुत बड़ी प्रशंसनीय बात है. टू हैव this kind of urge for learning is not common, and it is one of the virtues which can take people ahead. तो उस रूप से आप एक बहुत अच्छी वर्च्यू के मालिक हैं. हम लोग आज बहुत सारी बातें करेंगे. मेरा जो अप्रोच रहेगा वो कैफेटेरिया अप्रोच टाइप का रहेगा, जिसमें हम जाते हैं तो एक मेन्यू होता है. वो मेन्यू में काफी सारी आइटम होती है. उन्हें हमें जो जमता है वो हम लेते हैं. मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, आज जो भी बातें होती है उनमें से जो 1, 2, 4 बातें आपको जमे उसको जरा नोट कर लीजिएगा, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कीजिएगा, उसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लीजिएगा. जो बातें नहीं जमती है उसे लिखने की भी आवश्यकता नहीं है. तो जो कुछ युवान दोस्त यहां होंगे उनसे मेरी दरख्वास्त है कि अब लिखने की कोई चिंता मत करिएगा. एक बात मैं लाइटर वेन में सबको बताता हूं तो आपसे भी बताऊंगा. बहुत सारी बातें होगी, लेकिन ये बहुत सारी बातों का कोई बर्डन आप अपने ऊपर मत रखिएगा. Oh, we'll have to listen, now we'll have to remember, and now we'll have to work upon. What a big burden now I'm going to be carrying. My request to you would be, don't carry this burden with you. जितनी बातें हो ये सब के ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा, लेकर जाना पड़ेगा, उसको महलमारी करके ये बर्डन अपने पास में मत रखिए. लेकिन हमेशा लास्ट में मैं एक बात करता हूं तो मैं आपको बताऊंगा, आनंद से लीजिएगा विथ ए स्माइल. लेकिन जितनी बातें हो वो सभी यहां छोड़ के भी मत चले जाइएगा. थोड़ा बहुत ले जाइएगा, साथ में काम आएगा. Entrepreneurs, for that purpose, so far as the habits are concerned, good habits take us up. अभी अशोक भाई ने बताया
In the similar way, not so good habits can bring us down. In the world of business, it's known to you, maybe remember it. In the world of business, nothing happens by accident. ये धंधे की दुनिया में कुछ गलती से नहीं हो जाता है. सेफ्टी के लिए एक वाक्य है, शायद आपने सुना होगा. Accidents do not happen. Accidents do not happen. They are caused. In the similar way, in the world of business, if success is there, success is caused. God forbid, if failure is there, failure is caused. अच्छी आदतें विकसित करना थोड़ा मुश्किल है. जैसे कि गुलाब का पौधा अपने को नर्चर करना है, बड़ी मेहनत होती है. नहीं अच्छी आदतें अपने आप में चली आती है, जल्दी जल्दी आती है, बहुत देर से जाती है. उसे पालने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. इट्स लाइक वीड्स, गुजरात में जिसको निंदामण कहते हैं. इट्स लाइक वीड्स, या तो वो बबुल के वृक्ष जैसी होती है जिसे बोना ही नहीं पड़ता है. अच्छे पौधे के पास से उसे दूर करना पड़ता है. हम लोग आज जो बात करने के लिए जा रहे हैं उसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, मार्गदर्शक सिद्धांत. मजा आएगा. सबसे पहला है, great people do not start practicing greatness, do not start practicing great habits when they become great. They start practicing great habits when they were nobody. महान लोग अच्छी आदतें महान होने के बाद में विकसित नहीं करते. वो ये महान आदतों पर तब से काम करते हैं जब उनको कोई पहचानता भी नहीं है. ये एक प्रिंसिपल है. दूसरा प्रिंसिपल है, लर्निंग एंड efforts for developing right habits. Learning and efforts for developing right habits are not compulsory. Learning and efforts for developing right habits are optional, but the consequences are compulsory. सीखना और अच्छी आदतें विकसित करने के लिए प्रयत्न करना, ये कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है. करना है वो करे, लेकिन करना नहीं करना, इसके परिणाम कंपल्सरी है. एक बात आगे हुई, वो भी एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, सक्सेस इज नेवर एन एक्सीडेंट. और एक लास्ट पॉइंट जो आप सब जानते हैं लेकिन जानकर अच्छा लगेगा, हैबिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर आर कॉन्सिक्वेंशियल टू द एंटरप्राइज. ये बात हम सब जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर की आदतें एंटरप्राइज, कंपनी, बिजनेस के लिए भी कॉन्सिक्वेंशियल है. अच्छी आदतें आगे ले जाएगी एंटरप्राइज को,
नहीं अच्छी आदतें हम सब जानते हैं। लास्ट छोटी सी बात, ये 4 प्रिंसिपल हो गए, और ये जानकर शायद आप लोगों में से काफी लोग जानते भी होंगे, फॉर्च्यून 500 कंपनी का एक लिस्ट बनता है जो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली दुनिया की 500 कंपनियों का एक लिस्ट बनता है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात यह है वो लिस्ट में से हर साल 10 से 20% कंपनियां डिसअपियर हो जाती है, और बाद में वो कंपनियां वो लिस्ट में कभी देखने को भी नहीं मिलती, कभी कभी तो वो कहीं देखने को नहीं मिलती। इसका संबंध हम आज जो बातें कर रहे हैं उसके साथ में है। अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। इसके लिए आपको अपना चैट बॉक्स का उपयोग करना पड़ेगा, एकदम छोटी सी, इसका कोई वजन नहीं है। ऐसी हम सब लोगों ने सांप सीढ़ी की गेम खेली है बचपन में, और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को शायद आजकल खेलते हुए भी देखते होंगे। तो वो सांप सीढ़ी की गेम को मन में रखते हुए हम जवाब दे कि वो गेम और हमारी लाइफ, इन दोनों में कौन से 2 चीजें कॉमन है। सांप सीढ़ी की गेम और हमारी लाइफ, इनमें कौन से 2 चीजें कॉमन है। ये लोडेड क्वेश्चन नहीं है, और 1 मिनट है हमारे पास में मैक्सिमम। सिंपल सा क्वेश्चन है। यस, गुड गुड, वेरी गुड। काफी कॉमन एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव। वेरी गुड। विक्ट्री एंड डिफीट, सुंदर। ओके, dice and luck also somebody said. Very good. Okay, fine. Now there is another question. In the game of snake and ladder, सांप और सीढ़ी की गेम और हमारी लाइफ, इन दोनों में कौन सी एक चीज डिफरेंट है, कौन सी एक चीज अलग है, कॉमन नहीं है। अगेन चैट बॉक्स, कौन सी एक चीज अलग है, एक ही अलग। ओके, प्लानिंग, एफर्ट्स, गुड। गोल, प्लेयर्स, ओके, रियलिटी, एक्सपेक्टेशंस, लक और motivation. Very good. Okay, we can control, record, research. Okay, dice is luck, life is efforts. क्या बात है, क्या एक्सप्रेशन है, एकदम धन्यवाद। वर्क, हाउ वी मूव, ग्रेट। आप लोगों ने सही पहचाना है। सांप सीढ़ी की गेम में डाइस नक्की करता है, पासा नक्की करता है हम सांप के मुंह में जाएंगे कि सीढ़ी की शुरुआत से ऊपर जाएंगे। हम नहीं नक्की करते, लेकिन हमारे जीवन में हम खुद नक्की करते हैं। और ये वाक्य आप साथ में ले जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपने जीवन में हम नक्की करते हैं कि हमारे पांव सांप के मुंह में रखे या हम सीढ़ी से ऊपर जाए। हम नक्की करते हैं गुटखा खाना या नहीं। हम नक्की करते हैं स्वभाव में जेलसी पालना या नहीं। हम नक्की करते हैं नई नई चीजें सीखना या नहीं। हम नक्की करते हैं एक अच्छी टीम के लिए किस तरीके से ध्यान से काम करना। चॉइस इज अवर्स,
सीढ़ी भी हमारे पास है, सांप भी हमारे पास है। बस एक हमें ध्यान रखना है और याद रखना है कि हम कभी भी ये नहीं कह पाएंगे और कहेंगे अरे ये तो गलती से हो गया। ये गलती अभी होने वाली नहीं है, क्योंकि इतने दिन के वेबिनार हमने अटेंड किया है, इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट किया है, तो अभी हमको पता चल गया है कि क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या हमें ऊपर ले जाएगा, क्या नीचे ले जाएगा, ये हमको पता है। तो अभी हम लोगों को इस दिशा में ध्यान रख के आगे बढ़ना है। एक वाक्य इस विषय ये पॉइंट के समापन के लिए, if we want to achieve something which we have not achieved so far, we'll have to do something which we have not done so far. हमें परिणाम की पराकाष्ठा चाहिए, हमें परिणाम की पराकाष्ठा चाहिए, तो हमें प्रयत्नों की भी पराकाष्ठा करनी पड़ेगी। ये हम अपने मन में रखेंगे। आज मैं आपसे जो हैबिट्स के बारे में बातें करने वाला हूं, वो हैबिट्स कुछ इस प्रकार की है। सम गुड एंड ग्रेट हैबिट्स फॉर टुडे, मतलब आजकल के लिए जहां हम लोग काम करते हैं, वो डे टू डे के लिए वो बहुत काम की है। ऐसी कुछ हैबिट्स which are good for today. Habits, next point is habits which will be good for building our future. अपना भविष्य बनाना है, उसके लिए कुछ हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। हैबिट्स फॉर आवर फैमिलीज हैप्पीनेस, क्योंकि हम सब लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो हमारी फैमिली है, और फैमिली की हैप्पीनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये 3 पॉजिटिव हैबिट्स के बारे में होगा। और एक लास्ट एरिया जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, वो है लाइफ डिस्ट्रॉइंग हैबिट्स। अच्छा, तो हम लोग, और लास्ट में उसके बाद में मैं आपसे ये भी कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि ये हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा वो बात करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के मुझे आज आपसे शेयर करना है, जो हैबिट्स हमें आगे ले जाने में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा लेने वाली है, आज भी काम में आने वाली है, वो है लीडिंग बाय एग्जाम्पल। Every leader, every entrepreneur is supposed to lead by example. And interestingly, this choice to lead by example or not, to be a role model or not, that choice is not with the leader. Interestingly, अभी थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, मजा आएगा। एंटरप्रेन्योर को रोल मॉडल जैसा व्यवहार करना या नहीं, एंटरप्रेन्योर को रोल मॉडल बनना या नहीं, ये निर्णय एंटरप्रेन्योर के हाथ में नहीं है, क्योंकि वो चाहे न चाहे उनकी टीम के लोग उनमें हमेशा रोल मॉडल ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे ध्यान में आ रहा होगा, ये चॉइस एंटरप्रेन्योर के पास में नहीं है। उनकी टीम के लोग एंटरप्रेन्योर में वो रोल मॉडल बिहेवियर ढूंढेंगे, देखने को मिलेगी तो मोटिवेट होंगे, देखने को नहीं मिलेगी तो डिमोटिवेट होंगे, और उसके कॉन्सिक्वेंस भी होंगे। तो हर एक बार उन्हें अपने आप को पूछना है, और ये एक वाक्य है ना,
ये एक ही पॉइंट यदि हम लोग फॉलो करेंगे, एंटरप्रेन्योर के रूप में हम अपने आप को एक सवाल, ऑफिस में जाने के बाद में, ऑफिस में रहते हुए, ऑफिस के बाद में, घर में हम अपने आप को पूछेंगे बस एक ही सवाल है, Am I showing role model behavior as entrepreneur? क्या मैं एंटरप्रेन्योर के रूप में रोल मॉडल बिहेवियर दिखा रहा हूं क्या? बस ये एक सवाल जो है वो हमें सामने के किनारे पे ले जाएगा। जो जवाब आएगा ना वो आपका मेंटर, कोच, गाइड, एवरीथिंग है। ये एक सवाल आपका मेंटर, कोच और गाइड है। गांधी जी के सचिव थे महादेव भाई देसाई। सब लोगों को स्वतंत्रता की कहानी शायद याद नहीं होगी। उनके पुत्र थे नारायण भाई देसाई, अब तो वो भी नहीं रहे। उन्होंने भी अद्भुत काम किया था। नारायण भाई का जन्मदिन था, उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा, कहा मेरा जन्मदिन आ रहा है तो मुझे आशीर्वाद भेजिएगा। गांधी जी ने एक पोस्टकार्ड नारायण देसाई को लिखा। एक पोस्टकार्ड क्रॉस में एक लाइन लिखी थी, चिरंजीव नारायण तू मारी आशा पूरी करीश। लिखित बाबू तुम मेरी आशा पूरी करोगे बाबू। ये पोस्टकार्ड मैंने देखा था नारायण भाई के पास। नारायण भाई ने कहा कि जब मुझे ये पत्र मिला तो मुझे लगा कि ये गांधी जी ने क्या लिखा, ऐसा लिखना चाहिए, तुम बहुत पढ़ोगे, तुम बहुत आगे बढ़ोगे, तुम दुनिया में नाम कमाओगे। उसके बजाय तो उन्होंने ये लिखा। लेकिन नारायण भाई ने कहा जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, जैसे जैसे परिवार में, जैसे जैसे मेरे सामने विकट स्थितियां आती गई, हर स्थिति में अपने आप को एक सवाल पूछता था, इस सिचुएशन में गांधी जी मेरे से कैसे व्यवहार की अपेक्षा करेंगे। बस यही मैं सवाल अपने आप को पूछता था और हर एक परिस्थिति में सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हुए मैं जीवन के अंत तक पहुंचा हूं। एक ही सवाल और कुछ नहीं। ये जो सवाल है हमारा, क्या मेरा व्यवहार एंटरप्रेन्योर के रूप में रोल मॉडल है? बस एक सवाल हमें सामने के किनारे पे ले जाएगा और ये सिर्फ हमारे हाथ में है। ये व्यवहार ऐसा करना ये हमारे हाथ में है। तो दूसरी बात ये भी है कि ये भी है कि हमारे इस रोल मॉडल व्यवहार से, बिकॉज ऑफ दैट, मोर टैलेंट विल कंटिन्यू टू बी विथ अस। हमारे साथ में अच्छे लोग ज्यादा रहेंगे, ज्यादा आएंगे, ज्यादा समय तक टिकेंगे हमारे रोल मॉडल व्यवहार से। एक वाक्य आप लोग साथ में ले जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। इट्स ए नेटिव इक्वेशन। इट्स ए नेटिव इक्वेशन। आपको पीटर ड्रकर की किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन काम का बहुत लगेगा। टीम में अच्छा कितना होता है? हाउ मच गुड you can expect in team? तो जवाब है टीम लीडर में हो -1, टीम लीडर में हो -1। so whatever amount of goodness the team leader might be having, -1 will be the goodness you can find in the team. And how much not so good things you can find in the team? Equation कहता है not so good things in leader +1,
लीडर में जो नहीं अच्छी, एंटरप्रेन्योर में जो नहीं अच्छी चीजें है, +1 एक बढ़कर के टीम में आती है। ध्यान में आ गया होगा कि रोल मॉडल बिहेवियर हमें क्यों करना चाहिए। Desire to win and achieve, that is another area for the entrepreneur. Those who do not wish to win have already lost. हमारे यहाँ सौराष्ट्र में ऐसा कहा जाता है कि भेड़ियों की सेना का सरदार सिंह हो और सिंह की सेना का सरदार भेड़िया हो, तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि भेड़ियों की सेना सिंह की लीडरशिप में जीतने की संभावना ज्यादा है। ये हमें बताता है कि why a leader must have, an entrepreneur must have the desire to win. और वो मैंने +1 और -1 की जो बात बताई उसे यहां हम लोग लागू करेंगे। तो if the entrepreneur fails, yes, why we can't? आज मैंने जब एक बार आपका वेबिनार सुना था 18th अप्रैल को, I realized, I heard from all the industry leaders, they were radiating confidence. अभी हम लोग शुरू में बात करते थे, तब भी आपने कहा कि हाँ भाई, आपने ये थोड़ी कॉन्फिडेंस बढ़ने वाली बात बताई, अच्छा लगा। तो a desire to win, जिसमें जीतने की इच्छा होती है ना, उसको ईश्वर कहीं से भी कोई अच्छा सा बल दे देता है। अल्केमिस्ट का एक प्रिंसिपल है, वो कहता है कि हमारी शुभ इच्छाओं को पूरी करने के लिए द होल यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स, ब्रह्मांड की सर्व शक्तियां उसमें काम में आती है। तो ए डिजायर टू विन, और जो जिसमें डिजायर टू विन होती है वही ये कॉन्फिडेंस और एनकरेजमेंट रेडिएट करते हैं। एंटरप्रेन्योर का ये एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अभी मैं टाइम मैनेजमेंट के एरिया में आ रहा हूं, लेकिन मैं यूजुअल टाइम मैनेजमेंट की बातें नहीं करूंगा, क्योंकि आपको भी मालूम है, क्योंकि आप सब लोग टाइम मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स अटेंड कर चुके होंगे अभी तक। तो मैं तो वो सभी बातें नहीं करूंगा, लेकिन उसके संबंधित छोटी छोटी एक दो बातें करूंगा। मेरा पहला पॉइंट ये है कि जो हम ABC एनालिसिस करते हैं बिजनेस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट and most critical to the company, little less important and less critical to the company, and least important and least critical to the company. हम लोग जो कहते हैं कि 20% of the elements contributing to 80% of the result, ये statistical principle सही साबित हो चुका है हर जगह पे। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि whatever plan you have for the day, 80% of your time must go into those 20% of the elements contributing to 80% of results. आपका समय, आपका 80% टाइम आपके वो 20% कस्टमर में जाना चाहिए जो 80% टर्नओवर या तो आपको बिजनेस को कंट्रीब्यूट करते हैं। आपके टीम के वो 20% एम्प्लॉइज में जाना चाहिए जो 80% को कंट्रीब्यूट करते हैं। आपके वो 20% इश्यूज में जाना चाहिए जो आपके 80% को अफेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो दिन का प्लान करते हैं वो प्लान को अगले दिन करना चाहिए, वो प्लान को देखना चाहिए और उसमें फाइनल करना चाहिए कि क्या मेरा समय 80% वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% एलिमेंट में जा रहा है क्या। Managing priority and managing time is one of the most important jobs, one of the most important responsibilities of the entrepreneur. तो
इसके ऊपर उनको काम करना है, टाइम स्लॉट्स बना करके। rather the entrepreneurs, effective entrepreneurs do not start with task. वो टास्क से शुरुआत नहीं करते, they are starting with time. वो टाइम के स्लॉट बनाते हैं, रूटीन, फोकस थिंकिंग एटसेट्रा। उदाहरण के तौर पे रूटीन 4 घंटा है, आपका रूटीन 4 घंटे में पूरा हो ऐसा प्लान हुआ तो इससे फायदा ये होगा कि वही 8 घंटे में हम लोग 4 घंटे एक्स्ट्रा पा पाएंगे। एंड इट हैज बीन प्रूव्ड एट ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस वेयर इट इज यूज्ड। तो अपने समय को बराबर प्लान करना है, वो समय में वैल्यू ऐड करना है। इसलिए क्या करना है, अगले दिन हमें प्लान करना है, जिनको जो करना है वो एलोकेट अगले दिन करना है, और कल जो करना है उसका होमवर्क आज करना है। ये करने से हम काम में वैल्यू ऐड कर पाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 100% होमवर्क फॉर 100% मीटिंग्स। दुनिया में ऐसा देखा गया है, अनुभव हुआ है कि जो लोग बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं वो बहुत अच्छा होमवर्क करते हैं, बहुत अच्छा होमवर्क करते हैं। जैसे पिछले दिन हमने अगले दिन का होमवर्क कर लिया। एक स्टडी ने बताया कि ऐसे सफल लोग या तो वही दिन शाम को घर जाकर सोने से पहले अगले दिन का होमवर्क कर लेते हैं, या तो बड़े सवेरे होमवर्क कर लेते हैं। लेकिन और ये साथ में ले जाएंगे तो आपको बहुत काम आएगा, लेकिन होमवर्क किए बिना अपने काम की जगह पे वो जाते नहीं है, और होमवर्क करने के लिए वो अपने काम की जगह पे लेट जाते हैं, ऐसा भी नहीं करते हैं। होमवर्क का जो प्रिंसिपल की बात हम अभी कर रहे हैं उसमें मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि होमवर्क की आदत हम अपने में विकसित करें और अपने टीम में भी विकसित करें। और टीम के लिए क्या करना है, सिंपल सी बात है, हम टीम के लोगों को कहेंगे जब भी वो मिलने के लिए आते हैं एक सवाल पहले पूछेंगे, क्या आप अपना होमवर्क करके आए हैं? वो कहते हैं हाँ एकदम पक्का होमवर्क करके आए हैं, मोस्ट वेलकम एंड कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। ये आदत बराबर बना के रखना। वो कहते हैं कि नहीं सर अनफॉर्चुनेटली होमवर्क इज नॉट कंप्लीट। बहुत प्यार से उनको बताइए ठीक है होमवर्क करके आइए, क्योंकि होमवर्क करने वाले व्यक्ति के सामने होमवर्क किए बिना जाना वो एक क्राइम है। और जो आप लोगों ने देखा होगा, आप तो एंटरप्रेन्योर्स है, आपने देखा होगा कोई भी मीटिंग में जो व्यक्ति होमवर्क किए बिना जाता है वो दूसरों का सबसे ज्यादा टाइम खराब करता है। और हमने देखा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि ये होमवर्क की आदतों ने 75% तक टाइम में बचत करवाई। मैं तो हम सब लोगों को बताता हूं, आपने भी सुना ही होगा, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं होमवर्क का एक एग्जाम्पल। फोन करने से पहले क्या बात करनी है उसका पॉइंट्स लिख लेना चाहिए, पॉइंट लिख लेना चाहिए। और उसके बाद में बात करने से 50% टाइम कम जाता है, 1.25 टाइम्स अचीवमेंट ज्यादा होती है, इफेक्टिवनेस ज्यादा मिलती है, सिर्फ होमवर्क के कारण। होमवर्क is life changing habit for everybody, entrepreneurs, non-entrepreneurs, any kind of a person, any kind of leader। एक नई बात आपके लिए नहीं होगी लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है फोकस्ड थिंकिंग।
हमने मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के बचपन में सूर्य प्रकाश में रख करके कागज के टुकड़ों को जलाया होगा। ये कागज के टुकड़े सूर्य किरण के कारण नहीं जलते, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास ना होता, सूर्य प्रकाश में 100 साल तक वो टुकड़ों को हम रखते तो भी कुछ नहीं होता। लेकिन ये मैग्नीफाइंग ग्लास सभी किरण को एक जगह पे फोकस करता है, इस कारण से इग्नाइट हो जाता है। फोकस इज इक्वल टू इफेक्टिवनेस। और हम सब लोगों ने देखा हुआ है कि कोई एक काम के ऊपर, कोई एक जटिल प्रश्न के ऊपर, कोई एक नया प्रपोजिशन तैयार करने के लिए एट ए स्ट्रेच हमें समय चाहिए, और वो समय टुकड़े टुकड़े में मिलने से काम नहीं होने वाला। एट ए स्ट्रेच मिलेगा तो काम होगा। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं, ये फोकस्ड थिंकिंग का एक सिंपल सा सूत्र है, 1 day 90 minutes 1 सब्जेक्ट। एक फोकस एक छोटे से बिंदु पे ऊपर करने के कारण से मैग्नीफाइंग ग्लास ने कागज जला दिए। हमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट को लेकर 90 मिनट उसी पे सोचना है, और वो एलिमेंट आने वाला कहां से है? आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है उसी में से आने वाला है। इसलिए ये 90 मिनट आपकी सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाली है। लेकिन ये 90 मिनट अनइंटरप्टेड रूप में आपको मिलती रहे। मैं तो कहता हूं आप वीक में 2 बार ही कीजिए, लेकिन वीक में 2 बार जब हम फोकस थिंकिंग करते हैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, इसका मतलब हो गया साल में 104 बार। कैन यू इमेजिन what's going to be the extent and value of your contribution because of this focused thinking? And believe me, and please note, ये focused thinking दिन के दौरान ही करने का है, एक्स्ट्रा टाइम में नहीं करने का। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना ये करता हूं कि जब आप में ये हैबिट डेवलप होती है और आपके टीम के की मेंबर्स में जब ये डेवलप होती है, तब हम लोग उसके ऊपर काफी सारा काम कर सकते हैं, काफी सारा अच्छा रिजल्ट हमें मिल सकता है। अच्छा, एक और नई हैबिट के बारे में मुझे आपसे बात करनी है, वो है पॉजिटिव रिपोर्टिंग। हम लोगों ने क्या देखा है, आपने शायद देखा होगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पे देखा गया है, ऐसा हमने अनुभव किया है कि कोई भी काम को चेज करने में, hey, have you done that job? Hey, what's the status of that job? Hey, what's happening on that major issue? अरे भाई वो काम हो गया कि नहीं? अरे भाई तुमने मेरे को बताया नहीं। ये पूछते पूछते में लीडर्स फैमिली में जितने लोग हैं उनका 25% टाइम जाता है लोगों को चेज करने में। 25% टाइम अपना चेजिंग में जाता है। इंटरेस्टिंगली जो चेज करते हैं ना अपने जैसे लोग, उनको भी अच्छा नहीं लगता, जिनको चेज किया जाता है उनको भी अच्छा नहीं लगता है। और आपको मालूम है क्यों होता है ये? बिकॉज वी आर नॉट डिमांडिंग दैट फ्रॉम पीपल। तो हमें क्या करना है? सिंपल सा, आज से, उसके लिए कल मत करना, आज से एक नियम अपने लिए बना दे, बाकी अपनी टीम के लिए बनाए। पहले अपने लिए बनाए, जो जो काम मैं करता हूं, जिसके लिए मुझे किसी को कुछ बताना है, किसी को कहना है, इन्फॉर्म करना है, वो उनके पूछे बिना मैं करूंगा। I will report before being asked। और अपने टीम के लोगों को भी हम समझाएं कि भाई आपके साथ में जब असाइनमेंट की बातें हो जाती है, उसके बाद में ये जो समय हमने नक्की किया है पूरा करने का, तो पूरा करके
आप सामने से बताओगे, मैं नहीं पूछूंगा। और ऑर्गेनाइजेशन का ये स्वभाव बना लीजिए। ये स्वभाव बनने से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रांग होती है। कभी कभी आपको मालूम होगा, जिंदगी में अनुभव शायद आया होगा, मैं चाहूंगा कि आपको अनुभव ऐसा न हो, लेकिन कभी कभी लोग इतनी हद तक शर्म छोड़ देते हैं, आप उनको कहते हैं कि अरे भाई ये तुमने मुझे बताया भी नहीं। हाँ साहब, लेकिन आपने पूछा भी नहीं था। ये शर्म छोड़ने का चरम बिंदु है। अभी इसको खत्म करें। सामने से पूछकर समय की बर्बादी की दुनिया को खत्म करें। एक ऐसा समय, और मैं आपको विश्वास से बताता हूं, ये पूरी हैबिट लाने में आपको 1 वीक लगेगा, 1 वीक से ज्यादा नहीं। अपने टीम के लोगों को समझाना है, उसके बाद में देखना है। जो सामने से रिपोर्ट करता है उसे कॉम्प्लीमेंट करें, ओह गुड, प्लीज कीप इट अप, ऐसा ही करना सामने से। जो नहीं करते हैं उनको करेक्ट करें। You were supposed to be informing me in advance without my asking you. You have not done it. Please don't repeat it. क्यों नहीं किया ऐसा नहीं पूछने का। आज एक बिंदु हृदय में लिख कर जाइए, नॉन कॉम्प्लायंस का कभी एक्सप्लेनेशन नहीं पूछने का। तुमने मेरे को क्यों सामने से नहीं बताया, कभी नहीं पूछने का। तुमने मेरे को सामने से नहीं बताया, ठीक नहीं हुआ, अभी सामने से बताना, चलो बोलो, खत्म। क्योंकि उनकी लंबी चौड़ी कहानी सुनकर के आपको क्या फायदा होने वाला है। He has to learn to comply, that's all. तो ये पॉजिटिव रिपोर्टिंग मेरी आपसे प्रार्थना है, आप अपने यूनिट पे एकदम एस्टेब्लिश करवा दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अप्रिसिएशन और करेक्शन, हम सब लोग जानते हैं, appreciations must be done in public, correction must be done in private. भाई सब लोगों के बीच में प्रशंसा करें और करेक्शन बुला करके करें। लेकिन एक वाक्य आज साथ में ले जाएंगे तो आपको मजा आएगा, वो है praises and punishments are like soda। उसका ओरिजिनल शब्द प्रयोग शैंपेन है, लेकिन हम गुजरात में उसको नहीं बोलेंगे। तो praises and punishments are like soda, better served when bubbling। जब प्रशंसा और पनिशमेंट, जब ये घटना होती है तब करने का होता है। हमारे गुजरात में कहते हैं कि लगन ना गीत लगन ना गवाए। तो जब वो मतलब इवेंट है, घटना है, उस समय ये करना चाहिए। तो एप्रिसिएशन और करेक्शन उस रूप से सतत होते रहना चाहिए। हम जो करें उसको कहीं नोट करते रहना चाहिए। और कोई एक जगह पे एक कार्यक्रम में मुझे पूछा था, मुझे उस समय जो जवाब आया वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं आज भी कहूंगा। कभी किसी ने मुझे पूछा कि अप्रिसिएशन और करेक्शन उसका प्रमाण कितना होना चाहिए, ऐसा पूछा था। तो उसी समय कुछ मगज में आया था, कहा आपको शायद अच्छा लगे। गुजराती खाने में जितना मीठा होता है, स्वीट, उतना एप्रिसिएशन होना चाहिए, और जितना नमक होता है, सॉल्ट, उतना करेक्शन होना चाहिए। ये दोनों हम मेंटेन करेंगे तो हम टैलेंट को अपने यहां मेंटेन कर पाएंगे। एक वाक्य आपने सुना होगा, अपने बच्चों को कहा भी होगा, लेकिन आप जरा अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा। बिहेव इन ए फ्रेंडली मैनर। फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखना अपनी टीम में, फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना है, लेकिन डू नॉट बिकम ए फ्रेंड टू योर एम्प्लॉइज।
लेकिन अपने एम्प्लॉय के दोस्त मत बन जाना, क्योंकि यदि वो दोस्त बन गया ना तो आप उनका करेक्शन नहीं कर पाओगे। आप आंख ऊंची करके उनको बता नहीं पाएंगे दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, प्लीज डोंट रिपीट, ये आप नहीं कह पाएंगे। इसलिए मैत्री का वातावरण बना के रखो, मित्र मत बन जाओ। एक बात आप लोगों ने काफी समय से सुनी है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हम सीखते रहे सेल्फ रिन्यूअल। अब तो वेबिनार चल रहे हैं, हम सीखते रहे, लेकिन मेरी प्रार्थना है हर रोज 1 घंटा कुछ पढ़ना, लिखना, चिंतन करना, उसमें हम दें हमारे नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड, ये 3 में हम सतत वृद्धि कर सके। इसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। दुनिया आगे बढ़ती है, हम वहीं खड़े रहेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। दुनिया की गति से आगे बढ़ेंगे तो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। दुनिया की गति से स्पीड में चलेंगे तो हम अपने व्यवसाय में और बाकी के एरिया में लीड कर पाएंगे। सेल्फ रिन्यूअल हमें वो लीड देता है, और हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए लीड करने का दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए उनको ये सेल्फ रिन्यूअल की हैबिट अपने में विकसित करनी है। टू थिंक बियॉन्ड सेल्फ। हम लोग व्यवसाय करते हैं, कमाते हैं, कमाना वो अच्छी बात है, गलत नहीं है, लेकिन समाज से कमाते हैं तो समाज के लिए कुछ देना, खर्च करना, वो भी उतनी ही जरूरी बात है। समाज के परिवर्तन के लिए, किसी को मदद करने के लिए सबसे सरल रास्ता यदि कुछ है तो वो है डोनेट करो, पैसे दे दो, और सबसे मुश्किल है तो समय देने का। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कुछ समय रेगुलरली आप निकालिए। रेगुलर का मतलब हर रोज नहीं होता है, आप वीक में एक बार निकालिए, महीने में एक बार निकालिए, लेकिन वो रेगुलरिटी को फॉलो कीजिए, और जो आपकी ग्रेटिट्यूड का जवाब न दे सके ऐसे लोगों के ऊपर काम कीजिए। We need to make difference, and that is the only way to make difference to this whole country, and that is the only way to make difference to ourselves. Last point है, वो है इंट्रोस्पेक्शन। हम एक बात ध्यान में रखें, और वो है कि हम जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे, लोग हमें वो कहेंगे जो हमें अच्छा लगेगा, हमें वो नहीं कहेंगे जो हमारे लिए सही है। इंट्रोस्पेक्शन हमारे लिए मिरर है, सच्चा बताता है, मिरर है, और वो कोच है, वो बताता है कि भाई ये ठीक नहीं है तो ठीक करो। ये इंट्रोस्पेक्शन से पता चलता है। इंट्रोस्पेक्शन के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। उदाहरण के तौर पे, व्हाट वैल्यू हैव आई कंट्रीब्यूटेड टुडे? आज मैंने परिणाम के रूप में क्या वैल्यू कंपनी में ऐड की है। दूसरा सवाल है, आज मैंने क्या नया सीखा है। लर्निंग मस्ट हैपन बाय डिजाइन, नॉट बाय डिफॉल्ट। आज मैं अशोक भाई के साथ में चलते चलते लंच के लिए निकला, अशोक भाई ने 2 बात बताई, मेरे को बहुत अच्छी लगी, वो मैंने आज सीख ली, अच्छी बात है। बाय द वे भी लर्निंग मस्ट हैपन, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन इट शुड हैपन बाय डिजाइन, नॉट बाय डिफॉल्ट। अशोक भाई नहीं मिलते तो ऐसा नहीं चल सकता। लर्निंग मस्ट हैपन बाय डिजाइन। तो आज मैंने क्या सीखा? तीसरा क्वेश्चन है, मेरे जो कुछ संकल्प थे उसमें आज मैं कहां हूं? संकल्प का शुभारंभ सरलता से होता है, भूल जाने का काम उससे भी ज्यादा सरलता से हो जाता है। तो हम पूछेंगे अपने आप को तो भूलने का काम रुक जाएगा।
आज क्या क्या अच्छा हुआ, थैंक गॉड, जिससे हमारे में अभिमान ना आ जाए, अरे ये तो मैंने कर दिया, अरे ये ग्राहक को मैंने उल्टा कर दिया, इसको सीधा कर दिया, ये प्रोडक्ट को ये कर दिया, ये अभिमान अपने में ना आ जाए, क्योंकि अभिमान गिरने का शुभारंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, और क्या अच्छा हो सकता था, व्हाट कुड हैव बीन डन बेटर, एंड उसके बाद का क्वेश्चन है वो है व्हाट आई शुड डू अबाउट इट। वो हमें पहला क्वेश्चन हमें बताता है एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, दूसरा बताता है स्टेप्स ऑफ इंप्रूवमेंट। ये क्वेश्चन, ये हैबिट्स और ये इंट्रोस्पेक्शन की हैबिट हमें अपने में डेवलप करनी ही है। यदि कोई पूछता है ना कभी कभी कि इनमें से मेरे को एक ही हैबिट लेनी है, तो मैं कहूंगा कि इंट्रोस्पेक्शन की एक हैबिट आप अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। अच्छा, अभी हम आते हैं हैबिट्स फॉर बिल्डिंग फ्यूचर। उसमें सबसे पहला है बी कॉनोइजर, शौकीन, कॉनोइजर ऑफ टैलेंट। अपने आसपास के वातावरण से हमेशा अच्छी टैलेंट को ढूंढते रहे। गुजराती में कहावत है सुतारनु मन बावलिए। इस तरीके से एंटरप्रेन्योर का मन टैलेंट में होना चाहिए, अच्छी टैलेंट को ढूंढते रहे, उसे अट्रैक्ट करे और रिटेन करे। ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं। अट्रैक्ट करना, उसे जॉब में लेना, वो भी पॉसिबल है, लेकिन रिटेन करना बराबर उत्साह के साथ में, उनके उत्साह के साथ में, उनके उत्साह को बनाए रखने के साथ में रिटेन करना, वो बहुत चैलेंजिंग है। ये हमें करना है। कभी कभी लोग कहते हैं कि, और ये आप ध्यान में रखिएगा, कि लोग पैसे के कारण से चले जाते हैं। अभ्यास ये कहता है कि सिर्फ पैसे के कारण से लोग नहीं जाते हैं, लोग उनके साथ में हुए व्यवहार के कारण चले जाते हैं। तो हमें कॉनोइजर ऑफ टैलेंट बनना है। सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर हमें काम करना है। मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा, आपको थोड़ा लगेगा कि अरे भाई ये तो हमने नहीं सोचा है कभी। हमें सक्सेशन प्लानिंग का काम हम जब 45 के हैं तब करना चाहिए। 40-45 के हैं तब उसके ऊपर हमें काम चालू कर देना चाहिए। इसका मतलब है कि जिनको सक्सेसर के रूप में हम सोचते हैं, वो जब कैरियर की शुरुआत करता है, 20 साल का बेटा है, 22 साल की बेटी है, वो हमारे व्यवसाय में अभी आ रहे हैं, तब से उनके सक्सेशन के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। और इससे क्या ध्यान में रहता है, जब वो हमारी जगह लेने के लिए आता है, तब हमने सोचा है उससे ज्यादा अच्छे वर्च्यू लेकर आता है। अभी एक आदर के लिए मैं बताना चाहता हूं, कोई दूसरे दृष्टि से नहीं बताना चाहता। जीडी बिरला जी ने आदित्य विक्रम बिरला जी के मेंटरिंग, कोचिंग, ग्रूमिंग, सक्सेशन के लिए अपने पास में रखी हुई थी। बसंत कुमार जी के द्वारा वो काम नहीं हुआ था, वो काम जीडी बिरला ने खुद ने किया। और उन्होंने आदित्य विक्रम बिरला को कैसे तैयार किया था, आप तो यहाँ कुछ सीनियर लोग बैठे हैं, वो जानते हैं। At the age of 53, Aditya Vikram Birla passed away, and he had contributed to the Indian business like true Aditya. उनके अवसान के समय लोगों ने ये महसूस किया था, इंडस्ट्री ने महसूस किया था। कौन सी इंडस्ट्री? जिसको वो बिलोंग करते थे वो नहीं, द वर्ड इंडस्ट्री, वर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने ये महसूस किया था। लेकिन हमें जीडी बिरला जी ने सिखाया
सक्सेसर को ग्रूम करने का तब चालू कीजिए जब वो बिजनेस में पांव रखता है। और मैं जैसे सक्सेसर मतलब जो सक्सेशन में जिनको ग्रूम करना है, ऐसे सीनियर लोगों को ये बात बताता हूं, तो कुछ यंग यहां जो है उनको मैं बताना चाहता हूं। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब 20 साल वाले, 25 साल वाले, 30 साल वाले लोगों के लिए क्या है? एक ही है, मैं मेरे पिता से 1.25 टाइम्स वर्च्यूज में, अच्छी हैबिट्स में बन के दिखाऊंगा। अच्छे गुणों के बारे में मैं सवाया बन के, गुजराती में कहे सवाया बनीने मारा गुणों बाराમાં હું પિતાજી કરતા સવાયો બનીને એમની આશા પૂરી કરીશ। એ આજના યંગ સક્સેસર માટેનું કામ છે। તો this responsibility is with both, not one। आदित्य विक्रम बिरला की भी जिम्मेदारी है और जीडी बिरला की भी है, सबकी है, एक की नहीं है। और ये क्लैरिटी बहुत अच्छी रहती है। स्ट्रेंथ ऑफ चिल्ड्रन टू बी बिल्ड ऑन। भाई एक बात मैं यहां जो थोड़े मेरे से कम उम्र के, मेरे से ज्यादा उम्र के हैं, उन सबको दो हाथ जोड़ के बताना चाहता हूं, याद रखेंगे तो मजा आएगा। व्यक्ति में जो स्ट्रेंथ है, व्यक्ति में जो स्ट्रेंथ है वो बाहर लाने का काम भी बहुत मुश्किल है। जो है ना वो बाहर लाने का काम भी बहुत मुश्किल है। तो ईश्वर ने जो अंदर नहीं रखा है वो देकर के उसमें लाना वो कितना मुश्किल हो सकता है। यू कैन टीच मी अकाउंटिंग, यू कांट टीच मी लव फॉर फिगर्स। ये मुझे सिखा ही नहीं सकते आप कभी भी, क्योंकि ये इनग्रेन्ड है। मैं एचआर का प्रोफेशनल हूं। यू कैन टेल मी ये किताब पढ़ो, ये थियरम पढ़ो, ये तुम कानून पढ़ो, ये मैं सब कर सकता हूं। यू कैन गिव मी ऑल दिस थिंग्स, बट यू कैन नॉट गिव मी माई अर्ज फॉर लविंग पीपल। ये मेरे में आप दे ही नहीं सकते। यदि मेरे में है तो है, नहीं है तो नहीं है। ये कह करके मैं यहां जो कुछ सीनियर लोग हैं उन्हें प्रार्थना करता हूं कि अपने बच्चों में जो स्ट्रेंथ है उन्हें प्रोडक्टिव करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव करने की कोशिश करें। उनमें जो नहीं है उसके बारे में बार बार उनको कह करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। एनकरेज करने से कुछ मिलेगा, कहने से तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और शायद उनकी वो लाइकिंग ही नहीं है। हाँ, रेलेवेंट वीकनेस कुछ है, उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। है वी नीड टू बिकम टेक्नो सेवी। आने वाले दुनिया में टेक्नोलॉजी का बहुत रोल रहने वाला है। तो हम टेक्नोलॉजी के बारे में उसमें जानने वाले बहुत बड़े कीड़े बन जाए, ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम टेक्नोलॉजी को अपने से 2 हाथ दूर रखेंगे, उसमें से भी तो बाहर आ जाए। इसका मतलब क्या है? उदाहरण के तौर पे अकबर, अभी वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, सब लोग जानते हैं। इन्होंने क्या किया? अपने आसपास में ऐसे लोगों को रखा जिनसे वो सीख सकता था। एंड्रू कार्नेगी अमेरिका में स्टील बिजनेस के महापिता बन गए, पितामह। और स्टील टेक्नोलॉजी के बारे में वो कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था? अपने आसपास में ऐसे अद्भुत लोगों को रखा था जिनसे वो ज्ञान प्राप्त करते थे, समझ प्राप्त करते थे, उसके ऊपर काम करते थे। वी नीड टू बिकम टेक्नो सेवी। ये हो गई सक्सेशन बिल्डिंग की। और अभी हम लास्ट एरिया में आते हैं, वो है फैमिली के बारे में। फैमिली हैप्पीनेस। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, कुछ वाक्य
याद रखने की कोशिश करेंगे। For this world in which we are living, for this world we are one more person, but for our family we are the world, we are the world। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये परिवार एक ही जगह इस दुनिया में ऐसी है जहां हमारे जाने के बाद में अंधेरा हो जाएगा। ये एक ही जगह ऐसी है जहां हमारे सुख से कुछ लोग सुखी होते हैं, हमारे दुख से दुखी होते हैं। हमारे दुख से दुखी होने वाले संसार में हजारों मिलेंगे, हमारे सुख से सुखी होने वाले सिर्फ 3 लोग हैं इस दुनिया में, माता पिता, संतान और पत्नी, और कोई नहीं है। तो इनके लिए तो हमें ज्यादा कुछ न कुछ करते ही रहना चाहिएगा। और इसके लिए हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही सूत्र मार्गदर्शक बनेगा, आज मैं क्या करूं जिससे मेरे परिवार के लोगों को अपने लिए अच्छा लगे, मेरे लिए नहीं, हम अपने लिए अच्छा लगे। पत्नी के कुछ एक अच्छे कार्य काम की प्रशंसा करना, बच्चों को उनके बारे में, उनके कुछ काम के बारे में प्रोत्साहित करना, माता पिता ने हमारे जीवन में क्या रोल अदा किया था उसको याद दिलाकर, उनको धन्यवाद दे करके, उनको प्रणाम करके ये बताने का, यू हैव मेड माई लाइफ। ये उनके जीवन को उनको खुद के लिए अच्छा लगाने वाली बात है, ये हम याद रखें। और एक बात ये याद रखें कि कोई भी संबंध यदि इंपॉर्टेंट है तो उसको निभाने का जिम्मा हमारे ऊपर 100% रखे, उससे कम नहीं। इसकी जिम्मेदारी दूसरों को मत दे। इसका मतलब है ये संबंध मेरी ओर से हमेशा मजबूत रहेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हिंदुस्तान में संबंध कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जन्म जन्म का रिश्ता बनता है। लाइफ डिस्ट्रॉइंग हैबिट्स, अंतिम चरण में मैं पहुंचा हूं, टाइम थोड़ा मुझे ज्यादा गया है, ये जल्दी पूरा करूंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये इसमें जितना है इनमें से एक भी चीज न आपके जीवन में हो न आपके जीवन में आए। सबसे पहला पॉइंट है अर्ज फॉर इजी मनी। हमारे व्यवसाय में और दूसरे अनेक व्यवसायों में देखा गया है कि बहुत सारे लोग इजी मनी में अपने पूरी जिंदगी की कमाई को खत्म कर देते हैं, अपने जीवन के सुख को खत्म कर देते हैं। कुछ परिवारों ने मिलकर के खुदकुशी की है ओनली बिकॉज somebody had the urge for easy money। और ये इजी मनी के बारे में मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, once also is not acceptable। चलो एक बार खेल लेता हूं, इसको पता है एक बार खेल लेने में ही मामला खत्म हो गया तो? गुजराती में एक कहावत है, आप समझ जाएंगे, झेरना पारखा नो होय। इजी मनी इज लाइक किंग कोबरा। किंग कोबरा काटने से आदमी मर जाता है, ये अपने को पता है। तो अभी हमें उसके साथ में खेलना चाहिए क्या? भगवान से प्रार्थना है, मेहरबानी करके इजी मनी से दूर रहिए। इजी मनी एक मृगजल है। कुछ लोग ने पैसे बनाए होंगे, लेकिन गुजराती में कहावत है, चोरनी वादे चना न उठो चोरवा जवाई। आज 2 लोग सफल हुए हैं, 98 लोगो स्मशान में सूता है काची उम्रे, बिकॉज ऑफ इजी मनी। ये हम न भूल जाए। चलेगा, ये जो चलेगा नाम का शब्द प्रयोग है ना, वो सबसे ज्यादा भयंकर है। कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, ये हमारे बर्बादी का कारण बन सकता है, क्योंकि चलेगा कभी चलना नहीं चाहिए। दूसरा है, ये काम हम कल करेंगे। कल कभी आता है क्या?
किसी के पास आया है क्या? एक वाक्य साथ में ले जाएगा, बहुत मजा आएगा. If something is worth doing, it is worth doing now. It is worth doing in the best possible manner, and it is worth doing by me. यदि कुछ करने जैसा है तो अब भी करने जैसा है. ठीक करना है, अब भी करना है. याद रख के कल करने की बात कहां. If something is worth doing, यदि कुछ करने जैसा है तो अब भी करने जैसा है. वो श्रेष्ठ रूप में करना चाहिए. गुजराती में कहते हैं धकेल पंचा 150 ની જેમ नहीं, बेस्ट वे में करना चाहिए. एंड इट शुड बी डन बाय मी. तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन, कल करेंगे, उसमें से बाहर आने जाना है. निग्लेक्ट ऑफ सक्सेशन प्लानिंग. सक्सेशन के बारे में बहुत बातें हुई है, लेकिन इसके ऊपर गंभीरतापूर्वक काम नहीं करने से बहुत बुरे परिणाम आ सकते हैं. बहुत बुरे परिणाम आ सकते हैं. मैं 2 जीवित लोगों के बारे में अभी बताना नहीं चाहता हूं. अद्भुत इंडस्ट्रियल एम्पायर, लेकिन साथ में रहने का नहीं सिखाया गया. पराक्रमी पिता के द्वारा, जिन्होंने इतिहास क्रिएट किया हिंदुस्तान में, दोनों को साथ में रहने का नहीं सिखाया और दोनों को एक समान रूप में कंट्रीब्यूट करके आगे आना वो नहीं सिखाया. इस कारण से बहुत बुरे परिणाम देखने का समय आया. मान के चलिए, सक्सेशन प्लानिंग हम नहीं करेंगे तो रिक्वायरमेंट बंद नहीं हो जाएगी. जाते समय ध्यान में आएगा कि अरे रे, ये तो काम बहुत बड़ा था, पहले शुरू करते तो अच्छा होता. पार्शियलिटी इन टीम, ये ध्यान में रखने वाली बात है. हमारे टीम के अंदर में कोई पार्शियलिटी होनी नहीं चाहिए. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि हम समाजवादी समाज रचना की बातें करते हैं. बिल्कुल नहीं. हमारी टीम में जो अच्छा काम करता है, कंट्रीब्यूट करता है, वो हमेशा हमारे प्यार और दरकार का अधिकारी बनेगा. लेकिन जो नहीं करता है, लेकिन हमारा यशमैन है, और वो सवेरे हमारे लिए पान लेकर आता है, हमारे लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें करता है और कभी कभी झूठी झूठी बातें करता है, ऐसा व्यक्ति हमारा प्यार और दरकार का अधिकारी नहीं बनेगा. पार्शियलिटी का मतलब ये बनता है. और जहां जहां सही काम करने वाले को सही इज्जत नहीं मिलती है, वो टीम टूट जाती है. ध्यान में रखना. लास्ट पॉइंट, वहां ये लिस्ट पूरा होता है और वो है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आप शांति से सुनकर उसका मतलब समझ लीजिएगा. टू सर्च happiness outside the family. To search happiness outside the family is life destroying habit. यहां ये हमारा लिस्ट पूरा होता है. हम ये कैसे हमारे में विकसित करेंगे? अभी एक इरफान खान की 33 सेकंड की एक क्लिप चल रही है. उसका नाम है मैं वो सुनता हूं जो मेरे इरादे मजबूत करते हैं. आप लोगों ने सुनी होगी, हमारे इरादे मजबूत करे, ऐसे लोगों की कंपनी में रहे, ऐसे लोगों को सुने, और जो हमारे बुलंद इरादों को नीचे लाने की कोशिश करे, ऐसे लोगों से मत सुने. हम अपना लिस्ट करें, अपनी नजर के सामने रखें, सही लोगों से शेयर करें, सवेरे नक्की करें, शाम को हिसाब करें, तो ये सब कुछ बन के रहेगा. और ये हैबिट जैसे जैसे विकसित होगी, हम बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे. आखिरकार इन सब चीजों का हमारे जीवन के साथ भी संबंध है. मुझे विश्वास है
कि आज हमने जितनी बातें की उनमें से जो 2-4 हैबिट्स, 2-4 बातें आपको अच्छी लगी है, वो आप अपने परिवार में अपने बेटर हाफ, अपने पिताजी, दोस्त, उनको जरूर बताइएगा, कमिट कीजिएगा। और कमिट करना ये अचीवमेंट का एकमात्र रास्ता है। तो मेरी बात को पूरी कर रहा हूं, कमिटमेंट की ये क्लिप आपको दिखाकर, अंग्रेजी में है लेकिन संदेश आपको जरूर जरूर पहुंच जाएगा। वेदर वी वांट रिजल्ट्स और वी वांट टू गिव रीजंस, ये मैसेज है। You can share the screen, Himanshu bhai. I have given the command. Sir, you can share the screen. Share the screen. Yeah. I want to be the person that is the first person there and the last person to leave, because I think that the road to success is through commitment and through the strength to drive through that commitment when it gets hard. And it is going to get hard and you're going to want to quit sometimes, but it'll be colored by who you are and more who you want to be. You can only have two things in life, reasons or results. Notice, reasons don't count. When you're committed to an outcome, there are no excuses. There are no stories. There are no reasons not to achieve it. But if you're interested in an outcome, you will do what's convenient. You'll come up with excuses, stories, reasons to support your convenience desire. And so here's my question for you. Are you interested or are you committed? As you think about this that you know you need to handle, what are you going to do? Write down 3 strong reasons on why you know you must take action. And be explicit and descriptive in your reasons, because your reasons have power. Your reasons will drive you. When you have doubt, when your faith becomes weak, your reasons will fortify your faith. When you have an inner conversation, say, no, don't do that. Your reasons will become your rod and your staff to comfort you, to take you through those challenging moments. And what you will find, that when you decide to act, when you decide to take life on, when you're stretching out, when you're taking life by the collar, and you know that what you're doing is right, it gives a special meaning and power to you. You'll begin to discover some things about you that you don't know you got when you put yourself in that type of challenging situation. Sorry to feel as long as you feel forward. But you have heart, because there's some things you just can't get without perseverance. You gotta have heart, because sometimes you'll get hurt and you gotta be able to bounce back. You gotta be resilient. Sometimes you're gonna face obstacles. You might pass the test on the 4th try, not the 1st, not the 2nd, not the 3rd, and you gotta have the ability to get back up and act like you ain't never failed in the first place. Are you hearing me? If you would be willing to fight your way through it, if you would be willing to fight your way through this battle, fight your way through cancer, fight your way through that academic struggle, fight your way through support, fight your way through boxing, fight your way through football. If it was easy, everybody would do it. You gotta fight your way through it. You got this far, you don't quit. You should have quit a long time ago. You've come too far to quit now. You need to get a reward for it.
Thank you very much. Thank you, Himanshu bhai. I think this was a really fascinating talk. તમે હિન્દી અને ઇંગ્લિશમાં જે કોમ્બિનેશન કરીને it was very highly appreciated. A huge number of points, and the last but the not the least, the film actually. Yes. Are you interested or are you committed? Really was the icebreaker, and actually mind bender, you can call it in the true way. But simply amazing. Everyone was absolutely thrilled. We have, so I think other people have some questions, Avinash ji, if people have. Oh, please. Most welcome. Ashok bhai, I can't see any questions on the screen. Except very nice. Very nice, sir ji. Thank you, sir. If possible, share the presentation. These are the comments which are seen. There are no questions. It was spellbounding. I can say only one thing. Everything are really life implementable formulas you have given us. Over to Ashok bhai and Jitu bhai. Jitu bhai. जी सर आप बोलिए. અશોકભાઈ તમને ખબર છે કે વેબ પારાયણમાં આ બધા મુદ્દાઓ આવરી લીધા છે. ગુજરાતીમાં હોવાના કારણે બહુ સારી રીતે, પણ એક વસ્તુ મને આમાં સૌથી છેલ્લું વાક્ય ખૂબ ગમ્યું. જો बाकी लोगों के लिए हिंदी में हिमांशु भाई ने बताया, सुख घर में ढूंढिए सुख बाहर नहीं है. So true. नितिन जी, सर, नितिन भाई. हाँ जी सर. सर आपके पास लंबा लिस्ट है. हाँ सर, बहुत सारी चीजें कवर हो गई. मुझे ऐसा लगता है कि सारे पॉइंट्स हमने नोट भी करे, और जो अपन ने पॉइंट्स नोट करे वो अपन सबको भेज देंगे. पर एक चीज मैं जैसा हरदम आपसे सुनता बोलता हूँ कि नेसेसिटी चेंजेस इनटू हैबिट्स. तो हमारी जो नेसेसिटी है उसको हम अगर कंट्रोल करते हैं तो वही हमारी हैबिट बनती है, और जितनी अच्छी हम करेंगे. क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि यस्टरडे लग्जरी टुडे हैबिट. कल हमारे लिए कोई चीज लग्जरी थी, आज की हमारी हैबिट बन जाती है. और लास्ट में ये कहूंगा कि वॉच योर थॉट, दे बिकम योर वर्ड. वॉच योर वर्ड, दे बिकम योर एक्शन. वॉच योर एक्शन, दे बिकम योर हैबिट्स. वॉच योर हैबिट्स, दे बिकम योर कैरेक्टर. वॉच योर कैरेक्टर, दे बिकम योर डेस्टिनी. तो मैं इस लाइन से इसको हाँ अशोक भाई. हाँ जी. मैं इस लाइन से इसको समअप करना चाहूंगा. और जो पॉइंट्स आपने और मैंने नोट करे अपन माइंडस्पीक ग्रुप के अंदर सब डालेंगे. मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. खास बात यह है कि हिमांशु भाई की हिंदी, इंग्लिश और गुजराती तीनों हमारे को समझेबल थी. नहीं तो फिर क्या है, थोड़ा ऊंचा स्टूल लगाने के बाद में भी समझ में नहीं आती है. तो बहुत अच्छे सेंटेंस थे, और मेरी तो आदत है अच्छे पॉइंट्स में नोट करके फिर उसके बाद में यूज भी लेता हूँ आपकी परमिशन लेके. और बहुत अच्छा सेशन रहा. काफी टेक्निकल सेशन के बाद में ऐसे लाइट सेशन जो हमारे को जो सीखे करे उसकी हैबिट में लाए, ये बहुत जरूरी है. तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ दी माइंडस्पीक टीम, पूरे टीम की तरफ से हिमांशु भाई को. और आगे भी हमारा ये जर्नी शुरू रहेगा. अशोक भाई, कल का जो अपना सेमिनार है, कल का जो सेमिनार है वो भी हिमांशु भाई भट्ट जी का ही है. और सब्जेक्ट जो है कल का वो है कॉमन पीपल अनकॉमन ग्रेटनेस. जो साधारण व्यक्तियों की यूनिकनेस होती है उनके बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हिमांशु जी ने तैयार किए हैं कल की वेबिनार में. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं. तो वी शुड ऑल बी रियली रेडी फॉर दिस सेशन विथ आवर फैमिलीज. सामान्य लोगों की असामान्य बातें. हाँ, सामान्य लोगों की असामान्य बातें. परफेक्ट ट्रांसलेशन. ग्रेट सर. Thank you very much. Thank you very much, Himanshu bhai. Thank you, Jitu bhai. See you tomorrow again at 2 p.m. Thank you, Nitin ji, Avinash ji. Thank you, everyone. Sir, thank you. क्यों thank you बोल रहे हो अशोक भाई? सब रोज कहते हैं.
Thank you. Namaste. नमस्कार Namaste. नमस्कार अविनाश जी को दूसरा थैंक्स याद आ गया. राइट सर थैंक यू थैंक्स Goodbye.